Good morning, students. Now, last time we had finished up to this table 2.1, we had finished up about communicable diseases and how they are spread, what are the modes of transmission and causative of microorganisms, and how we can protect ourselves from these diseases, right? So now we shall move further uh, on the topic disease causing microorganisms in animals. Right now, as in human beings, we have diseases in the same way microorganisms can also cause diseases in animals as well as plants, right? प्लांट्स में भी कभी कभी क्रॉप्स में या आपके घर में भी प्लांट्स होते होंगे, उनके लीव्स कभी कभी खराब होते हुए आप देखेंगे. तो वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर attacking the plant also. So let us read. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. Underline this point. They also cause diseases in other animals. Okay. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Anthrax is a disease, a respiratory disease है anthrax, जो human और animals में, cattle में, दोनों में होता है, right? Now it is about anthrax. It is given here. Robert Koch, 1876, discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease, right? It is a respiratory disease, anthrax. ये नॉर्मली कैटल में होता है. कभी कभी उसका इन्फेक्शन जो कैटल के कांटेक्ट में ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं उनको भी हो जाता है, राइट? ओके. इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस. Sorry, it is caused by a bacteria. That bacterium was invented by Robert Koch. Okay. Now further, disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. अब हमने फर्स्ट लेसन में देखा क्रॉप प्रोडक्शन होता है. क्रॉप प्रोडक्शन में हम व्हीट, राइस, पोटैटोज ये सब कुछ उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, राइट? अब ऐसे में, ऐसे क्रॉप में जो हमारे फील्ड में है उसको अगर डिजीज लग जाएगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा फार्मर का, राइट? सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ट्रीट दीज डिजीजेस. कभी कभी क्रॉप में ऐसा लग जाता है. मैंगो ट्रीज में भी कभी कोई डिजीज लग गया तो उसकी वजह से जो मैंगोज उसके ऊपर उगते हैं वो खराब हो जाएंगे. सेम वे एप्पल एंड ऑरेंज, राइट? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबको नुकसान कर सकता है. तो अभी उसके लिए भी वी हैव टू फाइंड आउट रेमेडीज. द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. See table 2.2 for some such plant diseases. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. उसके ऊपर भी हम लोग केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं वो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं. Now table 2.2, some common plant diseases caused by microorganisms. One is citrus canker. Citrus canker is caused by a bacteria and the mode of transmission is इन एयर. सिट्रस कैंकर नॉर्मली है ना, सिट्रस यानी कि लेमन के प्लांट्स में या ऑरेंजेस में इसमें होता है और इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज. देन रस्ट ऑफ वीट, ये वीट का डिजीज है, वो वीट में होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगी. एयर एंड सीड्स में से ये स्प्रेड होता है. उसकी जो सीड्स आती है वीट की, उसमें से भी जो न्यू प्लांट आएगा इट विल बी अ इन्फेक्टेड प्लांट बिकॉज सीड इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन देयर. एयर में से भी ये फैलता है. मतलब एक को हुआ तो आसपास के व्हीट क्रॉप्स को भी हो सकता है थ्रू एयर. नाउ येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा. भिंडी आपको पता है, भिंडी की सब्जी आप खाते होगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओकरा इन हिंदी. सो इसका ये होता है येलो वेन, मतलब उसका जो लीव्स है वो येलो होते जाते हैं, वेन्स, और पूरा प्लांट फिर ड्राई हो जाता है. दैट इज कॉज्ड बाय वायरस एंड इट इज स्प्रेड थ्रू एन इंसेक्ट. ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू फूड पॉइजनिंग, right? Write down this table also, plant related diseases. Please write down in your notebook because you need to learn all these diseases. Humans में कौन से communicable होते हैं और इसमें कौन से होते हैं plants में, that also you should know. Now further, food poisoning. Bujo is invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition would be due to food poisoning.
उसने कुछ बाहर खाया बर्थडे पार्टी में और घर जाके उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, वॉमिट्स होने लग गई बिकॉज ही हैड गॉट फूड पॉइजनिंग। उसने कुछ स्पॉइल्ड फूड खा लिया था वहाँ पार्टी में, जिसकी वजह से his stomach started reacting. पहेली wonders how food can become a poison. Food कैसे poison बनेगा, right? तो let us read. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. मतलब पुराना खाना है, बचा हुआ खाना है, अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, बाहर पड़ा रहेगा और नेक्स्ट डे खाओगे तो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, फंगी, वो तो सब जगह हवा में घूम रहे होते हैं, राइट? तो दैट कैन कम एंड जर्मिनेट ऑन इट, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपको दिखाई तो नहीं देगा कि इसके ऊपर फंगस आया है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी आपको दिखेगा, पर अगर आप उसको खाओगे तो आपके स्टमक में उसका रिएक्शन होगा एंड यू विल हैव हाइपर एसिडिटी एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स, एंड इसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled, right? That is why it is very important कि हम लोग food को अच्छे से maintain करें. बचा हुआ है तो भी हम लोग उसको फ्रिज में ढक के रखें so that microorganisms don't come in contact with it. Food preservation. In chapter 1, we have learnt about the methods used to preserve the store food grains, right? हमने वो पढ़ा, silos में रखते हैं, right? They are huge storage houses for storing grains. उसको पहले ड्राई करते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर अंदर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ईजिली अटैक करेंगे. बट अगर उसको ड्राई करके स्टोर करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट अटैक इट ईजिली. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड? अब कुक्ड फूड को घर में कैसे प्रिजर्व करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी वो ढक के रखना है खाना, so that it is not open to the microorganisms around in the air, because air में बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होता है, बहुत कुछ होता है जो हमको पता भी नहीं होता और हमको दिखता भी नहीं है. So उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए we need to keep the food covered. You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell. गंदा सड़ा हुआ फूड में से गंदी स्मेल आएगी. हैज़ अ बैड टेस्ट. टेस्ट में भी वो खट्टा हो जाता है नॉर्मली. अगर बिगड़ जाता है खाना और आप खाना जाओगे तो यू विल सी दैट उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है. एंड चेंज्ड कलर, कलर में भी थोड़ा चेंज आ जाता है. Is spoiling of food a chemical reaction? Yes, it is a chemical reaction because these microorganisms which are present in the food, they release some toxic substances. Toxic मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस वो लोग रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन फूड में होता है और वो खराब हो जाता है. पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. सड़ गए mangoes, right? But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time, right? मैंगो पिकल जो उसकी दादी बनाती है वो खराब नहीं होता. क्यों खराब नहीं होता? हम उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं बाहर से लाके? नहीं. प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है उसके अंदर? तेल, ऑयल डालती है मदर, ग्रैंड मदर, राइट? आपकी मम्मियाँ घर पे अचार बनाती होगी तो उसके अंदर वो क्या डालती है? सब ज़्यादा उसमें ऑयल होता है. ऑयल इतना डालते हैं कि जो भी उसके अंदर जो मसाला होता है या मैंगो के पीसेस होते हैं वो पूरे ड्रेंच्ड हो जाए ऑयल में. मतलब आपकी बॉटल में अगर यहाँ तक मैंगोज भरे हुए हैं और यहाँ तक उसका मसाला है तो इतना ऊपर तक उसके अंदर ऑयल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा कि पूरा उसके अंदर सोक रहेगा, पूरा ऑयल के अंदर डूबा रहेगा, जिसकी वजह से ऑयल की एक परत ऊपर जमी रहेगी. अब ऑयल की एक परत जमी रहेगी तो ऊपर से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे वो इसके कांटेक्ट में इजीली आएंगे नहीं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और ये फूड जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगा. इसीलिए अचार के ऊपर काफ़ी सारा तेल मम्मियाँ आपकी डाल के रखती है ताकि it does not come in contact with the bacteria and microorganisms, fungus around. अगर तेल नहीं होगा तो ये मसाला और जो मैंगो की पीसीज रहेंगी अंदर वो सब बैक्टीरिया और फंगस के कांटेक्ट में आ जाएगा और इजीली उसके ऊपर फंगस जम जाएगा, राइट? खराब हो जाता है अचार, कभी कभी आपने देखा होगा. फिर अब ये भी डिस्कस करती होगी आपकी मम्मी कि इसमें तेल कम पड़ गया इसलिए ये खराब हो गया या कुछ भी. दैट इज बिकॉज ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव. सेम वे
salt and sugar also act as a preservative. sugar यूज़ करा जाता है जैम्स में, जेलीज में, फिर वो छुंदा बनाती होगी आपकी मम्मी घर पर, या फिर मुरब्बा बनाती होगी, वो सब में शुगर सिरप पड़ता है. शुगर सिरप की वजह से क्या होता है, दे डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज़ वाई उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. जो भी आपके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिश, मीट, वो सब हम लोग सॉल्ट में डाल के रखते हैं. कोल्ड स्टोरेजेस में सॉल्ट के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट दीज नॉन वेजिटेरियन फूड्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो वो खराब नहीं होता है, राइट? ओके, now let us read further. But she knows that mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. Chemical method. पहले chemical methods पढ़ते हैं. chemical method में chemicals को ऐड करते हैं. आपको मार्केट में जो तैयार जैम्स, जेलीज सब मिलते हैं, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट इज़ एन एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव. वो ज़्यादातर सारे आपके जैम्स, जेलीज और पिकल्स में यूज़ होता है. आजकल आपको पतंजलि में वो इसका जूस भी मिलता है, एलोवेरा का जूस मिलता है, आंवला का जूस मिलता है, देन तुलसी का जूस मिलता है. वो सबको भी प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसका जूस रखोगे तो वो इजीली ख़राब हो जाएगा, फंगस इजीली उसके ऊपर जम जाता है. लेकिन अगर उसके अंदर आप सोडियम बेंजोएट डालोगे, या दूसरा प्रिजर्वेटिव है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, अगर वो उसके साथ मिक्स करोगे तो इट विल नॉट इजीली गेट स्पॉइल्ड, राइट? So this is a chemical method of preservation. Now let us read. Salts and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Pickles यानी अचार. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. These are also used in jams and squashes. Squashes मतलब fruit juices जो आपको मिलते हैं ना, वो रियल का मिलता है, माजा मिलता है, ये सारे फ्रूट जूसेस है, पर वो भी उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है, राइट? Squashes to check their spoilage. Okay. Now preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. बहुत टाइम तक उसको वो फ्रेश रखता है. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. उसके अंदर easily bacteria आने नहीं देता है salt. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind. Tamarind यानी इमली. इमली में भी फंगस हो जाता है, तो इमली को भी प्रिजर्व करने के लिए उसके साथ नमक को मिलाया जाता है, सो दैट बैक्टीरिया उसको इजीली अटैक नहीं करते, राइट? सो राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, दे आर इम्पॉर्टेंट. ओके, देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. शुगर सिरप में उसको ऐड करते हैं. कभी कभी शरबत भी बनाते हैं घर पर शुगर सिरप में. ये सब आंवला का शरबत है या कच्ची केरी का शरबत है, उसमें भी आपकी मम्मियाँ शुगर ऐड करती होगी और फिर उसको ढेर सारा उबालती है शुगर के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर सिरप बन जाता है अंदर, और फिर वो जो अंदर मैंगो है या आंवला है वो ख़राब नहीं होता है. लॉन्ग टर्म आप उसको फ्रिज में रखो और जब भी चाहो उसको पानी के साथ मिक्स करके आप पी सकते हो. सो दैट इज़ शुगर सिरप. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, राइट? तो शुगर भी बैक्टीरिया को अंदर ग्रो करने से स्टॉप करता है. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. पिकल्स यानी अचार. बाहर के जो पिकल्स आपको मिलते हैं मार्केट में, डीमार्ट में या कहीं पे भी, जो रेडी पिकल मिलता है उसमें ज़्यादातर विनेगर होता है, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है. देखना, whenever you eat that pickle you will feel that वो थोड़ा खट्टा है. जो अपना नॉर्मल अचार जो घर पर बनाते हैं उससे थोड़ा वो खट्टा होता है, बिकॉज विनेगर इज एडेड. विनेगर इज सावर इन टेस्ट. वो विनेगर खट्टा होता है बेसिकली of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. Okay, now heat and cold treatments.
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क। रोज़ मम्मी घर पे जो भी दूध हम लाते हैं, पाउच वाला लाते हैं या कोई भी आपको घर पे देके जाता है गाय का या भैंस का दूध, तो आप उसको मम्मी हमेशा गर्म करते हुए देखा होगा आपने। मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूध के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको किल करने के लिए यू नीड टू बॉइल द मिल्क। सिमिलरली we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. फूड हम लोग इसमें रखते हैं, फ्रिज में क्यों रखते हैं? बिकॉज वो लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैस्चराइज्ड, राइट? What is pasteurization? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. 15 से 30 सेकेंड तक उसको 70 डिग्रीज पे गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं बराबर, और एकदम से उसको चिल कर देते हैं। इन हाफ अ सेकेंड इट इज चिल्ड, एकदम से गर्म ठंडे का रिएक्शन होता है उसके ऊपर। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. आप जब वो पाउच वाला दूध घर पे आता है अमूल का, अमूल डेयरी का, तो उसके ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। पैस्चराइज्ड मिल्क मतलब उसके ऊपर ये प्रोसेस करी जाती है जिसकी वजह से अंदर बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। गर्म ठंडे का रिएक्शन उसके ऊपर किया जाता है। पहले बहुत गर्म करते हैं, फिर एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीटली वो न्यूट्रल हो जाता है और उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा बचते नहीं है, राइट? नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल सब कुछ सील पैकेट्स में आता है। वाई? बिकॉज टू स्टॉप द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको अफेक्ट करके सब कुछ खत्म, सब कुछ बिगाड़ देंगे, राइट? दे विल स्पॉइल इट। दैट इज वाई एवरी टाइप ऑफ फूड इज सोल्ड इन सील्ड पैकेट्स नाउअडेज टू स्टॉप द entry of microorganisms, bacteria and fungus and all that, right? Now nitrogen fixation we will do next time. Whatever points I have given you, please write them in your notebook. They are very important. फूड प्रिजर्वेशन में मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं करवाया, आगे जाके जो मेथड्स है फूड प्रिजर्वेशन की उसमें करवाया। सो राइट देम, राइट ऑल द मेथड्स, दे आर इम्पॉर्टेंट। एंड वो किस किस में यूज होती है वो भी यूज करो, वो भी लिखो। देन व्हाट इज पैस्चराइजेशन, दैट ऑल्सो यू राइट। एंड लास्ट वन इज स्टोरेज एंड पैकिंग। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर टुडे। ये डिजीज वाला जो प्लांट डिजीजेस का है वो भी आपको लिखना है। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर।